हाय। आज की क्लास में हम एप्लेट के ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसकी वर्किंग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। किस तरह से वो सारे कंपोनेंट्स ऐड अप होते आएंगे वन बाय वन स्क्रीन एप्लेट के ऊपर, और हमारे सामने किस तरह से वो विजुलाइज होंगे, उसकी वर्किंग हम परफॉर्म करके देखते हैं। This is a class com demo in which we are creating number of components. Like you know very well how can you create a label, how can you create a text field, how can you create a radio buttons. You can also say that how can you create a text area. You can also make a pop-up menu. You can how can you create a list. All such kinds of things we are discussing inside this com demo class. We are here creating a com demo class. So one by one हम इसकी working perform करके देखते हैं कि how can you add number of components in a applet. So first of all, सबसे जो the basic thing which is known as label. Label is nothing but your dummy string which show that the next component you add up in front of them, what will be the activity performed by using that component. So you are just showing the name. So how can you perform this? We can specify using now each component having its own class. So how can you use? We are creating a reference variable. We are again creating a object. Without that we can't implement any type of component. So first of all, create a component, and after that we can add that component one by one. So you can see over here how can you create. We are specifying the name of class which is known as label. Again we are creating a reference variable. This is the name of the component label which can be specified using the name of the class label. Now after that, how can we create object of that? Again the same thing, how can we create a object of our own class? In the same way we can create a object of that class. So here we are already using the reference variable L. Now we are creating an object of label. Along with that you can specify the name of that label. So here we are specify, suppose you are using most of the website and in front of the text field you are using the what that particular text field shows, then in that case you can specify the name in just before that particular component. So we are specifying suppose name, that's it. So at that creation time you are specifying what the name of that particular label, you can specify it in that as a argument. No doubt you can also use default constructor also without the string also. Now here we are specifying the label name in the form of name. Now again you want to add this particular label on applet, so in that case you have to use add method which is already defined in a applet. So यहाँ पर हमें L नाम से स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के जस्ट बाद हम ऐड करते हुए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एप्लेट पे लाकर सेट कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन, अब यहाँ हमने कोई लोकेशन तो दी नहीं कि हमारा ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐड क्या होगा। तो उस केस में इनिशियली टाइम पर हम यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंपोनेंट एप्लेट पर ऐड होते हैं। तो उसके लिए एप्लेट अपने बैक साइड पर एक लेआउट मेंटेन करके चलता है, तो उस लेआउट के ऊपर हमें वर्किंग करना है। तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जो एप्लेट अपनी तरफ से लेआउट बनाता है वो लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट। इस केस में जब फ्लो लेआउट वर्क करेगा, मतलब फ्लो लेआउट का मतलब क्या होता है कि आप एक के बाद एक कंपोनेंट ऐड करते आओगे तो वो उसका फ्लो एक के बाद एक बनाता रहेगा। मतलब एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, इस तरह से एक के बाद एक कंपोनेंट वो
ऐड करता जाएगा तो इस तरह से उसका फ्लो होता जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि फ्लो तो हमने समझ लिया कि किस तरह से उसका कंपोनेंट वन बाय वन आएगा, लेकिन कहाँ प्लेस करेगा। तो बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट में ये सेटिंग होती है कि जब आप कंपोनेंट ऐड करोगे तो वो उस पर्टिकुलर एप्लेट के सेंटर में ऐड करना शुरू करेगा। सेंटर में वन बाय वन वो ऐड करता जाएगा, जहां भी आपकी एप्लेट की स्टार्टिंग हो रही है उस स्टार्टिंग में, उस एप्लेट की स्टार्टिंग में टॉप ऑफ लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट करते हुए वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड करता जाएगा। तो हम अभी इस पर्टिकुलर सिंगल लेवल को देखते हैं, तो वो कंपोनेंट आपको उस एप्लेट के टॉप में सेंटर में अलाइन होता हुआ शो होगा। तो हम करके देखते हैं वर्किंग किस तरह से ये वर्क करेगा। ये देखिए हमारे सामने जो कंपोनेंट टॉप ऑफ द स्क्रीन टॉप ऑफ एप्लेट शो हो रहा है वो नेम है, इट इज अलाइन इन सेंटर। सो यू कैन सी हाउ कैन यू ऐड नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ हमने इनिशियली नेम नाम से देखा। हम अभी यहाँ पर किसी फॉर्म को डिजाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं किस तरह से आप एप्लेट पर कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। अभी हम कुछ भी यहाँ अलाइनमेंट मतलब हम हमारी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास एक के बाद एक कंपोनेंट जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो एक के बाद एक आता जाएगा। वो फ्लो उस जिस तरह से ऐड होता जाएगा वही उसका फ्लो डिसाइड कर रहा है। तो यही होता है फ्लो लेआउट। हम आगे अभी वर्किंग देखेंगे लेआउट के करस्पॉन्डिंग। अभी सब इनिशियली पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें सिर्फ कंपोनेंट किस तरह से ऐड करना है उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ उन चीजों को डिस्कस करना है। नाउ द next label will be text field. Again we are creating a reference variable of text field as a tf. Then in that case we can specify an object of text field, new text field. In that case you can again, now the next thing, initial point of time you can specify again a string through which user can understand what they have to perform. So inside in this case we can also specify a string. So let us look at that. Okay, we are specifying type text here. This particular message shows the user that okay, you have to type some type of activity over here. Now next one, how much number of character you want to allowed inside that particular text field. So आप यहाँ आकर उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया 20 स्पेसिफाई करा। तो यहाँ पर 20 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की विदित उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड की विजुअलाइज होते हुए हमें यहाँ शो होगी। तो हम अगेन this is the only creation, this is not an adding a text field, this is only a create. Now after creating that particular object of text field you can specify again a add method in which you can specify what type of component you want to add. So now we can add tf. Now what will happen, first label come, next text field come up, then in this flow one by one component will be added up. If we want text field first come and then after label you can specify first add a tf, then after that you can specify add label. So in that case flow will become first text field, after that label. Here first come label, then after that next will be text field. So the flow, the sequence you are trying to specify in an init method, in that flow one by one component will be add up. So we will look at this. Look at this. The text field, before that we are specifying that a label. Now जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स को ऐड करते आएंगे सेंटर अलाइनमेंट होते हुए प्रीवियस कंपोनेंट थोड़ा सा अपनी तरफ से शिफ्ट होता नजर आएगा और फ्लो होता जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने इनिशियल मैसेज उस टेक्स्ट फील्ड में शो हो रहा है कि आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट टाइप करना है तो आप यहाँ आकर टाइप कर सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ टाइप किया हेलो एवरीवन। जैसे हम नॉर्मली वेबसाइट डेवलपमेंट में देखते हैं, ये वेबसाइट नहीं है, इट इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहाँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं और किस तरह से नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐड होते हैं
उसको हम यहाँ वर्किंग परफॉर्म करके देख रहे हैं। तो हेलो एवरीवन करते हुए हमने यहाँ एक स्ट्रिंग दी। अभी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी जब तक हम कोई इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। अगेन यहाँ सिर्फ हम स्टैटिक एलोकेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट को स्टैटिकली किस पर्टिकुलर पोजीशन पर ऐड करना है, बस हम उतना एक्टिविटी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करके देख रहे हैं। तो हम इसके बाद जब ये सारे कंपोनेंट्स हम समझ लेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ कंपोनेंट किसकी क्लास क्या होती है और उन कंपोनेंट को जब हम ऐड करते तो किस तरह से ऐड होते आ रहे हैं, हम सर इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करके देख रहे हैं। नाउ अगेन next component will be, maybe you want to add another component which is known as choice. So you can add choice. It will show that how can you add number of items just like a pop-up menu. It is just like a text, it is look like as a text field, but there is a one more addition which is known as arrow. When you click on that arrow, again list will be drop down. In that list you can select any of the list via using that choice component. So now again we are creating an object of that particular choice. So in this case again we are specifying ch equals to new choice object हमने यहाँ create किया. Again nothing to specify inside this particular कंस्ट्रक्टर. सो अब इस केस में हमने सिर्फ अब यहाँ कंस्ट्रक्टर के बाद, अब क्योंकि हमारे पास एक आइटम नहीं है, हमारे पास बहुत सारी आइटम है, तो वन बाय वन उन सारी आइटम को ले जाकर हमें ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ch डॉट ऐड मेथड, उस कंपोनेंट में ऐड नाम की, जिस तरह से ऐड नाम की मेथड एप्लेट में है कि आपको कंपोनेंट को ऐड करना है. अब उस कंपोनेंट में जाकर नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ उनको हम क्या बोलते हैं आइटम्स, जो हमारी नंबर ऑफ आइटम ड्रॉप डाउन होगी, उन नंबर ऑफ आइटम को हमें वहां सिलेक्ट करना होगा. तो उसके लिए हमें उन नंबर ऑफ आइटम को ऐड करना पड़ेगा. तो हमने सपोज यहाँ ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिस भी लिस्ट में हमें जो भी वैल्यूज चाहिए होती है. तो हम यहाँ सपोज नंबर ऑफ नेम विजुअलाइज करते हैं, तो हमने यहाँ, या फिर हमने कोर्स के करस्पॉन्डिंग स्पेसिफाई करा, तो हमने यहाँ दिया BCA. कि हम जैसे ही उस पर्टिकुलर चॉइस पर क्लिक करें तो वहां हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम ड्रॉप होती हुई नजर आए, तो हमने उसके बाद स्पेसिफाई करा नेक्स्ट कोर्स नेम विल बी MCA. Again next course will become change dot add MBA, and that after that we can again next item will be add BE. These are the number of courses which can we put inside this particular drop down. You can say that it is a pop-up menu. सो हमने जैसे आप पॉपअप के बोल रहे हैं कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वापस वो ड्रॉप डाउन अप पोजीशन में आते हुए एज ए सिंगल टेक्स्ट फील्ड ही शो होगा. तो अब इस केस में अगेन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ऐड करने के बाद उस कंपोनेंट की नंबर ऑफ आइटम को हमें ऐड करना पड़ेगा. फिर उसके बाद जाकर हमें उसको एप्लेट पे जाकर सेट करना पड़ेगा. किसके बाद, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के सीक्वेंस में हम आगे बता रहे हैं, अगेन उसका फ्लो उसके जस्ट बाद आएगा. तो अगेन हमने यहाँ करा ऐड, उस कंपोनेंट को अगर ऐड करना है तो हमने यहाँ क्या दिया ch, क्योंकि हमारा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ch में आ रहा है. तो इस केस में हम अगेन वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ये देखिए आपके सामने पहला हमारा लेवल नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड आ रही है, देन अगेन यहाँ हमारा ये पॉपअप आ रहा है. यहाँ जिस आइटम को मैंने सिलेक्ट किया उस सिलेक्शन के बाद वापस हमारा वो पर्टिकुलर मेनू पॉपअप होगा और वापस हमारे सामने सिलेक्टेड आइटम उस पर्टिकुलर फील्ड में विजुअलाइज होगी. तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं वन बाय वन. Now the next thing, which is again related with choice, but which is different from this particular choice, which is known as list. Again there is a class list. Here we are creating a name of reference variable LST. After that, adding this one, we again create a reference, LST, and create an object of LST. Now list,
Now we have to understand one more thing in this particular scenario. There is a difference between same thing. There is a list of item visualized in front of you via using choice and via using list. But there is a difference. Whenever you are trying to use list, in that case, the whole number of items are visualized. But how many number of items will be visualized? Along with scroll bar also. If you are specifying 3 items but you are storing 7 items but visualize only 3 items, then how many number of items will come arise via using scroll? If you are specifying okay, you have to visualize only items but in that list there are more than 3 items in a list. In that case there is a scroll bar automatically come arises. So अब उस केस में हम किस तरह से वर्क करेंगे? तो हम चाहते हैं कि हम लिस्ट में मोर देन 1 आइटम ऐड करें और उसमें हमारे पास सिर्फ 3 आइटम विजुलाइज हो, तो हम इस केस में इसकी वर्किंग बता सकते हैं कि हमें सिर्फ 3 आइटम्स को विजुलाइज करना है। अब नेक्स्ट थिंग, चॉइस। सेकंड डिफरेंस बिटवीन चॉइस एंड लिस्ट। पहला डिफरेंस हमने क्या किया? विजुअलाइजेशन। वहां पर हमारा नंबर ऑफ आइटम ड्रॉप डाउन होती है, लेकिन लिस्ट में ड्रॉप डाउन नहीं होते हुए सिर्फ सारी लिस्ट की आइटम जितनी हमने विजुअलाइज की है वो हमारे सामने शो होगी। अब दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है? चॉइस में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एट ए टाइम एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम या तो एक आइटम को सिलेक्ट करें या एक से ज्यादा आइटम को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक ही आइटम सिलेक्ट हो, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट होता है बुलियन। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ यूजर एक ही आइटम एट ए टाइम सिलेक्ट कर सके, तो हम उस केस में उसे फॉल्स बताएंगे। लेकिन अगर हम बता रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट हो, तो उस केस में हम यहाँ ट्रू बता सकते हैं। तो हमने जैसे ही ट्रू किया, तो अब इस केस में हम ये यूजर को बता रहे हैं कि यूजर एक से ज्यादा आइटम को सिलेक्ट कर सकता है। तो अब इस केस में हमने वापस उसके अंदर अगेन नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करना है, तो इस केस में हम नंबर ऑफ पर्संस के नेम ऐड करते हैं। तो अब इस केस में हमने यहाँ स्पेसिफाई करा जॉन, हमने यहाँ स्पेसिफाई करा एलएसटी करते हुए एलएसटी डॉट ऐड, अगेन वी आर स्पेसिफाइंग मोंटी, again we specify lst dot add Raj. Now the next one, lst dot add Harish, again we specify lst dot add Rahim, again we specify the next name known as lst dot add Monica. In this way we can add a number of item inside a list. Again the next item in a flow which is known as list. So after adding choice we can again add list. We can add, after adding pop-up menu, we can add list. So you can, whenever that both of the item visualize, you can immediately seen that difference between pop-up menu and list. Both, no doubt both of them are list, but in that you can select a single item. In that case you can select more than 1 item via using specifying this particular true option. So now we can add a list. There is a mistake, a will be add up, so you can correct it. See, here is a mean list in which we are adding more than 3 items, but visualize only 3, because in a while creating an object of list, in that case we can say that we can set only 3 items will be visualized. But what will happen if we are adding more than 1 item? In that scenario it will automatically add a scroll bar.
here you can see that it is a scroll bar. You can select. Now next one, here only we can select one item, not more than one item. हम एक से ज्यादा select नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम एक से ज्यादा item select कर सकते हैं. हमने इसको select किया, ये भी select हो रहा है, ये भी select हो रहा है. अगर हम चाहते कि नहीं ये हट जाए, तो अब इस केस में हमने इसे हटा दिया. अब इसके बाद अगेन इस पे हमने स्पेसिफाई करा है, हमने यहाँ से वापस रिमूव. तो अब यहाँ पर ओनली सिर्फ एक ही आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज्यादा आइटम भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने ये पॉपअप मेन्यू देखा और इस तरह से हमने इसको अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट लिस्ट को ऐड करके देखा. अगर हमने यहाँ ट्रू की जगह फॉल्स बता दिया, तो जैसे अभी हम कर रहे थे कि एक से ज्यादा आइटम को सिलेक्ट कर रहे थे, अब एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट नहीं होगी, तो हमने यहाँ क्या बता दिया, फॉल्स. तो इसमें सिर्फ एट ए टाइम एक ही आइटम सिलेक्ट हो सकती है, जिस तरह से चॉइस में हो रही थी. लेकिन चॉइस में सिर्फ एक ही आइटम सिलेक्ट का ऑप्शन है. यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. इट डिपेंड्स करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट हो या हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है. नाउ दिस थिंग, आप यहाँ देख रहे थे पहले मैंने तीनों सिलेक्ट किया था, एक के बाद तीनों सिलेक्ट है, लेकिन अब एट ए टाइम ओनली सिर्फ एक ही सिलेक्शन हो पा रहा है, क्योंकि हमने वहां पर एज ए सेकेंड आर्गुमेंट ऑप्शन बता रखा है एज ए बुलियन फॉल्स. सो in this way you can add this particular thing. Now next thing, you also seen that if you are having options like you want specify more than one item on a particular form, in that case you are putting number of check boxes in the that you want user can select more than one item. So in that case we can again add a checkbox. So here again the next one is known as checkbox class. Here we are specifying chb1 comma chb2 then again comma chb3. So हमने यहाँ तीन चेकबॉक्स बनाया. इस केस में आपके सामने जो पर्टिकुलर बॉक्स बनकर आएगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा, जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आप सारी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी आइटम्स आपके सामने दी हुई है उन सबको आइटम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ आप चेक बॉक्सेस भी बना सकते हैं. तो अब इस केस में हम यहाँ चेक बॉक्स बनाने के लिए अगेन हमने यहाँ नेक्स्ट स्पेसिफाई करा, जो हमने यहाँ बताया chb1 इक्वल्स टू न्यू चेक बॉक्स. अगेन यहाँ हमने बताया कि ये पर्टिकुलर हो क्या रेड. अगेन आप पता जाता है, आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चाहते हो कि ये सिलेक्टेड ही होकर आए, मतलब किसी पर्टिकुलर चेक बॉक्स के आगे आप चाहते हो कि नहीं ये बाय डिफॉल्ट चेक होता वही हमें वहां दिखे, तो आप यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हो. अगेन ऑप्शन क्या है कि आप इसको ट्रू बताना चाहते हो, तो अगेन आप यहाँ इसकी वर्किंग बता सकते हो. अगेन chb2 करते हुए हमने यहाँ वर्किंग परफॉर्म की. नाउ अगेन हमने यहाँ स्पेसिफाई करा न्यू. अब यहाँ हम नंबर ऑफ आइटम्स बता रहे हैं. किस केस में, अगर आप रेड ग्रीन ब्लू करना नहीं चाहते तो आप अपनी तरफ से भी ऑप्शन बता सकते हैं. जैसे हमने यहाँ बता दिया बुक. जैसे हम यहाँ पर यूजर के सामने नंबर ऑफ चेक बॉक्स बता रहे हैं कि यूजर की इसमें कौन कौन सी हॉबीज है, तो उस केस में उसमें से जितनी आइटम्स दिख रही है उसके सामने उनमें से वो सभी को सिलेक्ट करना चाहे तो सभी को कर सकता है, या उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर वो चेक बॉक्स के फॉर्म में बता रहे हैं. तो हम यहाँ चेक बॉक्स का यूज करते हुए अगेन नेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं. यूजर को बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, या फिर उस केस में हम बोल सकते हैं कि यूजर को मैगजीन में उसका इंटरेस्ट है. तो हमने यहाँ बता दिया कि अगेन अब इस केस में हमने बता दिया कि इस पर कोई भी तरह का ऑप्शन सिलेक्ट ना होकर आए, तो हम यहाँ फॉल्स बता सकते हैं. अगेन chb3 स्पेसिफाई करा. अगेन हमने यहाँ यूजर से नेक्स्ट उसकी हॉबी स्पेसिफाई करी कि यूजर इसमें से अपनी हॉबी सिलेक्ट कर सकता है. तो चेक बॉक्स करते हुए हमने यहाँ स्पेसिफाई करा कि उसकी हॉबी स्पोर्ट्स में. तो हम यूजर से उसका फीडबैक लेना चाहते हैं, तो हम इस तरह से भी उसकी वर्किंग परफॉर्म करके शो कर सकते हैं. तो हमने यहाँ इस तरह से वर्किंग परफॉर्म करी. तो ये हमने नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस ऐड करे. अगेन इन सारे चेक बॉक्स को ले जाकर हमें ऐड करना पड़ेगा. तो अगेन देयर इज अ फ्लो. तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऐड chb1, then after that it will add
chb2, then after that add chb3। सो इस तरह से हमने सारे जितने चेक बॉक्सेस है उनको प्रीवियस जितने कंपोनेंट है उसके बाद अब वन बाय वन हम ऐड कर रहे हैं। अब अगर सपोज करो आपकी एप्लेट की साइज के करस्पॉन्डिंग अगर आपका जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो उस पर्टिकुलर फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है तो इट विल चेंज द लाइन। ये देखिए आपकी कंपोनेंट नेक्स्ट लाइन पर आकर बुक के बाद देखिए बाय डिफॉल्ट हमने वहां ट्रू कर रखा था तो ये ट्रू बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है। अगर आप दिया ये आपने सिलेक्ट किया था, अगर आपने इसे अनसिलेक्ट कर दिया देन आगे उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको अनसिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, तो आप सभी को सिलेक्ट करना है तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनिशियल जस्ट एप्लेट जब अपलोड होगी लोड होगी तो उस केस में आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ नंबर ऑफ चेक बॉक्स के फॉर्म में नंबर ऑफ आइटम्स को भी जिस तरह से हमने यहाँ आइटम ऐड करी, यहाँ आइटम ऐड करी, इस तरह से हम नंबर ऑफ आइटम इन सभी को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें यूजर के पास एक ही आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो। जिस तरह से यहाँ पे भी एक आइटम सेलेक्ट होने का ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक आइटम सेलेक्ट होने का ऑप्शन है, तो इसी तरह से इन चेक बॉक्स को भी हम किसी ग्रुप में बाइंड कर लेंगे और उसके बाद यूजर इसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम को भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे ऐसे हमारे पास ऑप्शन होता है कि जैसे यूजर की कैटेगरी है तो यूजर की कैटेगरी क्या हो सकती है कि यूजर जनरल को बिलोंग करता है, यूजर किसी पर्टिकुलर अदर कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं कि यूजर का एट ए टाइम एक ही कैटेगरी हो सकता है। या फिर हम दूसरे केस की बात करें कि सेक्स की बात करें या जेंडर की बात करें, तो जेंडर में यूजर या तो फीमेल होगा मेल होगा, तो अब इस केस में यूजर के पास एक पर्टिकुलर चॉइस है तो उस केस में सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो, लेकिन हमारा ये ऑप्शन है उसी फॉर्म में हो। लेकिन अब यहाँ पर वो आपने नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक टेक्निकल टर्म के बारे में सुना होगा, रेडियो बटन। उस केस में सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम ही हमारी सिलेक्ट हो सकती है, तो इस चेक बॉक्स का अगेन हम यूज करेंगे लेकिन उसमें सिर्फ एट ए टाइम एक ही आइटम हम सिलेक्ट कर सके। जैसे यहाँ अभी चेक बॉक्स में हम नंबर ऑफ आइटम सारी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ एट ए टाइम एक ही आइटम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ वर्किंग करके देखते हैं कैसे उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो अगेन हमने यहाँ स्पेसिफाई करा चेक बॉक्स। अब यहाँ पर हमने CHB11 CHB12 CHB13 स्पेसिफाई करा। अगेन देयर इज वन मोर जिसमें जाकर हम इन सारे चेक बॉक्स को ग्रुप कर देंगे जिसमें सिर्फ यूजर एक ही आइटम सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, चेक बॉक्स ग्रुप नाम से क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ चेक बॉक्स ग्रुप नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया CHG नाम से। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने नंबर ऑफ अगेन हमने जैसे यहाँ चेक बॉक्स बनाए थे सेम एज यूजुअल हम वापस से उस पर्टिकुलर नेक्स्ट के लिए क्रिएट करते हैं। तो हमने CHB11 बताया था, CHB12 बताया, CHB13 बताया। नाउ अब इस समय हम बताते जाते हैं कि यहाँ सेक्स के करस्पॉन्डिंग या जेंडर के करस्पॉन्डिंग हमारे नंबर ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट हो करा है। तो अब इस केस में हम यहाँ बता सकते हैं क्या, मेल फीमेल तो हम यहाँ भी सिर्फ मेल और फीमेल के करस्पॉन्डिंग दो आइटम्स ऐड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब आफ्टर एडिंग दिस चेक बॉक्सेस अगेन दिस चेक बॉक्सेस आर जस्ट लाइक दिस वन बट नाउ वी कैन चेंज दिस वन via using only one item will be selectable. In that case again here we have to add one more argument। जो हमने इसको ग्रुप में लेकर आना है तो जिस ग्रुप में हमने इसको ऐड करना है उसके लिए जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उस रेफरेंस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट हमें वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया था तो अब इसको ले जाकर हमें इन दोनों आइटम को इस ग्रुप में रखना है। तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा CHG करते हुए हमने यहाँ पर न्यू करते हुए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट्स इट। अब इस ग्रुप जो ये जो ग्रुप वाला पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका रेफरेंस CHG में आएगा। तो हमें इसको इस CHG को यहाँ पर आकर स्पेसिफाई करते हुए वर्किंग बतानी पड़ेगी। तो CHG सेकंड आर्गुमेंट हो गया, अगेन CHG
सेकंड आर्गुमेंट सेकंड वाले के लिए। इससे हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अब ये जितने नंबर ऑफ हमारे चेकबॉक्स बनकर आएंगे ये सारे एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप का मतलब होता है कि इस ग्रुप में से आप एक आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते, एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रीवियस वन में कोई ग्रुप नहीं था, सब अलग अलग थे। अगर आपको सभी को चॉइस सिलेक्ट करना है तो सभी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि सब अलग अलग है। लेकिन अब हम सब नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि किसी नंबर ऑफ आइटम को एक ग्रुप में डालकर सिर्फ एक एट टाइम एक को ही सिलेक्ट कर सके तो उस तरह उस केस में हम इसको यहाँ इस तरह से वर्किंग परफॉर्म करके शो कर सकते हैं। तो अब इस केस में हमने यहाँ क्या किया, इस CHB11 और CHB12 को हम ले आकर इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बाद जाकर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, CHB11 देन ऐड CHB12। तो ये अब हमारे साथ, लेकिन अब इनके जो पहले हमारे रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा था अब हमारे राउंड शेप के अंदर कंपोनेंट्स दिखेंगे। और ये जो हम ये मेल फीमेल के यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं ये उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लेबल हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट किसके लिए है तो उसके आगे लेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ लेबल के साथ साथ वर्किंग भी दिख रही है कि हम किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को किस रेडियो बटन को सिलेक्ट करें। तो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ ट्रू, अगेन अगर हम नहीं बताना चाहते तो दोनों फॉल्स आएंगे, तो हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमने दोनों को ट्रू कर दिया तो जो लास्ट सिलेक्ट ट्रू होगा उसको शो करेगा, प्रीवियस वन को वो फॉल्स, मतलब वो अनसिलेक्टेड हमें शो होगा। ये देखिए आपके सामने ये सिलेक्टेड दिख रहा है। अब इस केस में ये अनसिलेक्टेड है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो प्रीवियस वन विल बी अनसिलेक्टेड। तो अब यहाँ ये सिलेक्टेड हो गया, ये अनसिलेक्टेड हो गया, ये सिलेक्टेड हो गया, ये अनसिलेक्टेड हो गया। ये दोनों ग्रुप में है, जब ग्रुप में आ जाएंगे तो एट ए टाइम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये तीनों ग्रुप में नहीं है तो रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेंगे, तो उस केस में ये शो कर रहा है कि आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ हम ऐड अप कर सकते हैं। अब हमने जैसे हमने बोला कि हमने दोनों को ट्रू किया, तो अब इस ट्रू के केस में क्या होगा, क्या अगर आपने जो लास्ट वाला ट्रू किया है वो आपको सिलेक्टेड दिखेगा, प्रीवियस वन वाला अनसिलेक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब इस केस में हम इसकी वर्किंग भी कर सकते हैं कि दोनों ट्रू बता दो कि दोनों ही ट्रू शो करेगा, नहीं, जो लास्ट वन विल बी स्पेसिफाइड एज ए ट्रू, इट विल बी विजुअलाइज्ड एज ए सिलेक्टेड, प्रीवियस वन विल बी ऑटोमेटिकली अनसिलेक्टेड। ये देखिए ये लास्ट वाला आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड बता रहा है, प्रीवियस वाला अनसिलेक्टेड हो गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो अगेन सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ अभी यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को किस तरह से एप्लाइड पर ऐड कर सकते हैं और वो बाय डिफॉल्ट किस तरह से ऐड हो रहा है वो हम यहाँ विजुअलाइज करके समझ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मींस व्हाट, टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस क्या है, दोनों में हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, लेकिन टेक्स्ट एरिया में क्या है हमारे पास मोर देन वन लाइन हमें टाइप करनी है। तो उस केस में हम किस तरह से उसको परफॉर्म करेंगे, तो इस केस में हमने यहाँ आकर ऐड किया, सॉरी टेक्स्ट एरिया के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ रेफरेंस वेरिएबल अगेन इसके लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट एरिया नाम की हमारी एक क्लास है। तो हमने TA नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। हम यहाँ सिर्फ हर पर्टिकुलर कंपोनेंट के एक एक ऑब्जेक्ट बनाकर देख रहे हैं। जैसे फॉर्म की डिजाइन है उस केस में हमारा अगर मोर देन वन टेक्स्ट पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। अगेन हमने यहाँ नेक्स्ट रेफरेंस क्रिएट किया, TA इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट एरिया। अगेन अब हमें यहाँ चाहते हैं कि कितनी लाइंस हो, उस लाइन में कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सके, तो हमने बताया कि हमें 20 कैरेक्टर विजुअलाइज हो, और कितनी लाइंस हो सकती है तो हमने बोला कि 10 लाइन विजुअलाइज हो। तो 10 कैरेक्टर्स का विजुअलाइजेशन होगा और उसमें टेक्स्ट एरिया, इसीलिए उसको बोला टेक्स्ट एरिया, मतलब टेक्स्ट का एरिया बढ़ जाएगा, मतलब आप उसमें नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो। तो आपका इस टेक्स्ट का जो डायमेंशन एरिया का डायमेंशन होगा वो ज्यादा होगा। तो हम इस केस में इसकी वर्किंग करके देखते हैं। तो हमने पहले इसको ऐड किया, अगेन यहां जाकर ऐड करते हुए हम इसको TA को हमने जाकर ऐड किया, एग्जीक्यूट करके देख, ये देखिए आपके सामने ये टेक्स्ट एरिया, इसमें सिर्फ हमें 20 और उसके बाद हमारे सामने ये अगेन जैसे जैसे हम आइटम ऐड कर देंगे, कितनी भी आइटम ऐड करते आओगे, जैसे आपने एंटर किया, ये एंटर किया नेक्स्ट लाइन पे गया, फिर आपने एंटर किया अगली लाइन पे गया।
तो आप कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड करते जा सकते हो। आपने बताया कि 10 हमें इनिशियली कितना चाहिए, विजुलाइज कितना विजुलाइज होना चाहिए हमें, यहाँ पर 20 विजुलाइज होता है। 20 विजुलाइज अगर आपने बढ़ाया तो आपका विजुलाइजेशन और बढ़ जाएगा। तो अब इस केस में आप अपनी वर्किंग अपने रिक्वायरमेंट की करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। तो यहाँ हम जितनी नंबर ऑफ लाइन को ऐड करना है तो इंटर कर करके हम उन नंबर ऑफ लाइन को ऐड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 20 ऐड करना है एक लाइन के अंदर, आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ टेक्स्ट एरिया की वर्किंग देखी। तो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में क्या है, टेक्स्ट फील्ड में हमें सिर्फ एक लाइन ही ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में अगर हमें मोर देन वन लाइन ऐड करना है तो आप रो और कॉलम के फॉर्म में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करते हुए शो कर सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स यू वांट टू visualize. So now the next one, which will be the most important one, you can perform whatever be the working, is known as button. This is the next class. So here we are creating BT1, BT2, जितने नंबर ऑफ आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जितने हमने कंपोनेंट देखे हैं उन सब कंपोनेंट में आपको कितनी बार किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को अपने फॉर्म पर लाकर विजुलाइज करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद ही जाकर वो नंबर ऑफ कंपोनेंट आपकी फॉर्म के ऊपर जाकर ऐड हो। तो अब इस केस में हमने दो बटन बनाए तो हम दोनों बटन्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ अगेन BT1, जैसे हम नंबर ऑफ बटन्स बताते कि ये हमारा सेव का ऑप्शन है, ये क्लियर करेगा, ये सेव करेगा, ये ओपन करेगा, तो आप उस तरीके से वहां पर उसका नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं। तो हमने यहाँ बटन के लिए स्पेसिफिकेशन दिया। अब बटन का अगेन लेबल होगा कि हम इस बटन के ऊपर क्या काम करवाना चाहते हैं। तो हमने वहाँ यूजर को बता दिया कि ये सेव का है। अगेन हमने यहाँ बताया कि BT2 करते हुए अगेन न्यू बटन करते हुए हम यहाँ बता रहे चाहते हैं कि ये कैंसिल का हो। तो ये इस तरीके से आप यहाँ वर्किंग परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये कैंसिल का हो गया। तो ये इस तरह से दो बटन बनाए। तो अगेन फ्लो के करस्पॉन्डिंग हम इन दोनों को ले आकर उसके नेक्स्ट पर्टिकुलर वन में जाकर ऐड करेंगे तो हमारे सामने वो पर्टिकुलर बटन डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमने BT2 करके डिस्प्ले करा। तो ये ऐड हो गए हमारे सारे कंपोनेंट। इनको हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये सारे विजुलाइज हो रहे हैं। सॉरी, हमने सेमीकोलन स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पर। ये देखिए आपके दो बटन और विजुलाइज हो गए। यहाँ सेव और कैंसिल नाम के दो ऑप्शन आ रहे हैं। जब हम इवेंट हैंडलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जब हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करा या इसके ऊपर क्लिक किया या इसके ऊपर क्लिक किया या इसको सिलेक्ट किया या इनको सिलेक्ट किया, तो किसको हमने सिलेक्ट किया है, जैसा हमने एक्शन परफॉर्म होगा उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए।